Hello dear children, welcome to my YouTube channel for the chapter number 11 for class 9, that is work and energy. In the previous lectures we have discussed about, in the first lecture we discussed about the work and its types. Then in the second lecture we discussed about kinetic energy, work energy theorem and potential energy and how the factors affecting the kinetic energy and potential energy. So today we are going to discuss a very important derivation for law of conservation of energy. Law of conservation of energy. For law of conservation of energy, the definition says that energy can neither be created nor be destroyed, but can be transformed from one form to another. Or I can say total energy of a system remains constant. This is the simple definition for law of conservation of energy. To prove this, I will consider a kind of motion that this is the ground and the body is lying on that surface, top surface, that is at height h from the ground, right? At height h from the ground. Now, when this body will start falling towards the surface, then it will pass through this height. So I am considering this point as position A, and here when it will reach, this is position B, right? I will prove the total energy here and here, that will come same. But for my convenience, I consider one more point that is in between this C. कि फर्स्ट टाइम मैं इनिशियल पोजीशन पे प्रूव करूंगा एनर्जी, फिर फाइनल पोजीशन पे, और बीच में किसी भी पॉइंट पे शो कर दूंगा कि एनर्जी तीनों की सेम है. और सपोज कीजिए कि ये जो डिस्टेंस है, हाइट है इस ऑब्जेक्ट की, दैट इज x. तो ऊपर रिमेनिंग कितना रह जाएगा? टोटल h थी, ये x हो गया, तो ये रह गया h माइनस x. दिस इज द मीनिंग ऑफ हाइट एंड थ्री पोजीशंस वी हैव कंसीडर्ड. नाउ वी विल प्रूव द थ्योरम that total energy remains constant. Total energy means sum of kinetic and potential energy. So let us start this. 4 A. Now look at the object carefully. The object is at position A, right? Now object is not moving, it is placed at that point A. So object is at rest. Object is at rest. We know that if the object is at rest, thus velocity will be 0. Therefore, kinetic energy at that point will be 0. Right? Kinetic energy at point A will be 0. Now, potential energy will be equal to, कितनी हो जाएगी potential energy? Height कितनी है? h. और potential energy का फॉर्मूला फिर क्या होता है? mgh. Therefore, टोटल एनर्जी कैसे आएगी? दोनों को ऐड कीजिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? इट इंप्लाइज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. जो टोटल एनर्जी है वो mgh है. ओके, नाउ 4 B. अब B पॉइंट पे देखिए, बॉडी यहां से यहां तक आई, राइट? सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की. तो बॉडी ने कितना हाइट डिस्कवर किया? h, राइट? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन v square minus u square is equal to 2gh. 2as होती है equation. This is the equation of linear motion. But when a body is moving upward downward motion, then what will happen? That a will be changed into g and s will be changed into h. As there is upward downward motion, upward and downward motion,
therefore it can be written as v square minus u square is equal to 2gh, right? Or v square is equal to 2gh. Why? Because इनिशियल वेलोसिटी इज 0, जब वहां से स्टार्ट हुई थी बॉडी तो रेस्ट पे थी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू h g 2gh. इट इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर. अब इस v स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के लिख दो तो क्या बन जाएगा, हाफ m इंटू 2gh. 2 विल बी कैंसल, thus काइनेटिक एनर्जी कम्स mgh, राइट? Now this is my kinetic energy. अब मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी. mg h कितना है 0, क्योंकि बॉडी अब यहाँ पे आ गई तो ये h तो सारी खत्म ही होगी, इस पॉइंट पे आ गई बॉडी, तो h is 0, therefore potential energy is 0. thus टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgh, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0. तो मेरी यहाँ पे भी जो टोटल एनर्जी है वो भी क्या आई, mgh, यहाँ भी mgh, राइट? तो दो अलग अलग पॉइंट्स में मेरी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इस तरीके से आया. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर 4.c, थर्ड पॉइंट कौन सा है, c. अब c पॉइंट पे ध्यान से देखो, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी हियर. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि ग्राउंड से बॉडी कितनी ऊपर है ना, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट कितनी ऊपर है. अब यहां से अगर आप देखो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg. अब हाइट की जगह क्या आ जाएगा, कितना हाइट है यहाँ पे x, विच वी हैव कंसीडर्ड x, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgx. ओके, नाउ सेम वे वी विल यूज दिस इक्वेशन एज आई यूज हियर. यही वाली इक्वेशन इसमें भी यहीं से ही स्टार्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, देयरफॉर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh में कन्वर्ट होगा. बट अब यहाँ पे h की जगह पे बॉडी यहां से यहां तक आई है, तो कितनी हाइट कवर करी है उसने, h माइनस x. तो इसी वजह से मैं लिखूंगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू h माइनस x, राइट? As u is 0, therefore v square will be equal to 2g into h minus x. ये आ गई मेरी v square की वैल्यू. Therefore kinetic energy will be equal to half into m into v square की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 2g h minus x. 2 will be cancel, तो kinetic energy बन गई mg into h minus x. राइट, नाउ अगेन आई एम डूइंग द टोटल एनर्जी. इन दोनों की जो एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, एक काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल हुई, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे mgx, और काइनेटिक एनर्जी आई थी मेरे पास प्लस mg इंटू h माइनस x. नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, mgx प्लस ये कितना बन जाएगा, mgh माइनस mgx. mgx विल बी कैंसिल, तो इट इम्प्लाइज टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh. दिस इज माय थर्ड इक्वेशन. नाउ you can see from equation 1, 2 and 3 total energy is constant mgh, so that verifies the law of conservation of energy, right? I'm repeating again this derivation. We considered a body at height h, point A. तो हमने 3 पॉइंट्स कंसिडर किए, एक इनिशियल पोजीशन, एक फाइनल और एक इन बिटवीन, कहीं भी ले सकते हो आप. उस ऑब्जेक्ट, उस पॉइंट की जो हमने कंसिडर किया है थर्ड वन, उसकी हम हाइट ले लेते हैं x, राइट? तो तीनों पॉइंट्स पे हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और उसके बाद टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, राइट?